Hi everyone, I am Payal, your UPSC CSE Economy Educator, and I welcome you back on UPSC Uday by Unacademy. So before we start the session, a question I want to ask you is that is India growing or developing? Or if in case you consider any of the nation, तो क्या वो nation जो है वो grow कर रहा है या फिर develop कर रहा है? So our today's session is based on these two concepts which says growth and development. And most of the aspirants make mistake here. They consider development and growth as synonyms of each other, which is wrong. So आज के वीडियो में हम ये डिफरेंस क्लियर करेंगे कि ये दोनों एस्पेक्ट्स है क्या, these two are different aspects. And जो नेशन है, इज इट कंपल्सरी दैट नेशन में जो है वो ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली हो रही है, या फिर दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक नेशन अकेला ग्रो कर रहा है और डेवलप नहीं कर रहा, या फिर दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक नेशन जो है डेवलप कर रहा है और ग्रोथ नहीं कर रहा. एंड दिस टॉपिक ऑल्सो बिकम्स रेलिवेंट because most of the times a mains question has been asked on it, which talks about economic growth in the recent past has been led by increase in the labor activity. This question has been asked in 2022, which has firstly talked about economic growth. फिर उसके बाद they have asked that suggests the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity. So in the second statement, they have asked about the creation of more jobs, and creation of more jobs will lead to development of a nation. So you see कि in a question they have given 2-3 statements in which firstly they have talked about economic growth, and secondly they have asked you about the economic development. So in today's session we are going to discuss about the meaning of growth and development and the importance of both of these concepts. And next we will see the difference between growth and development, and then we will see some indicators of both of these aspects, and last में we will discuss about a famous debate which is Sen Bhagwati debate. ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो कि is based on growth and development concept only. All right, moving with the growth topic. So growth का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, then we will see कि इसका मीनिंग क्या है. So the definition of economic growth says that it is the total value of final goods and services that is produced in an economy over the given period of time. Now you will ask me that this definition is similar to the definition of GDP. Yes, GDP की जो definition है, that also says that it is the final total value of final goods and services that is produced in an economy. So इस definition से what you get that this includes quantitative aspect. जो growth है, it is related to quantitative. जो ग्रोथ है इट इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि इट इज इंक्लूडिंग और इट इज कंसिडरिंग नंबर्स, इट इज कंसिडरिंग नंबर्स ऑफ जीडीपी. नेक्स्ट इट सेज दैट इट इज कैलकुलेटेड ऑन द रियल टर्म्स टू द कॉर्नर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. अब रियल टर्म में कैसे है, रियल इफेक्ट कैसे है, दिस इज जस्ट लाइक आवर इनकम. वी हैव रियल इनकम. रियल इनकम मीन्स विच इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड. जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है दैट इज रियल इन टर्म्स. तो दिस ग्रोथ एस्पेक्ट is real in terms, which means that it is inflation adjusted. And to arrive at the real picture of the economy, growth concept is important. So growth concept जो है हमें कहाँ लेके जाता है, it shows the real picture of the economy. Now how it is calculated? I told you कि it is calculated on the basis of GDP numbers, which shows us quantitative aspect. And if I talk about the importance of growth, growth का importance क्यों है, हम जो है country हम कैसे observe करते हैं if our country is growing or not, उसका importance क्या है.
तो दिस इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट लेवल. जब अ नेशन ग्रोज इट मीन्स कि उस नेशन में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी बढ़ता है, विच मीन्स कि जो उस नेशन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंस, इट इंक्रीजेज द टैक्स रेवेन्यू. जब किसी नेशन की ग्रोथ होती है तो उसका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता है. अब वो कैसे? क्योंकि अगर किसी नेशन की ग्रोथ हो रही है इट मीन्स कि उसकी जो पब्लिक है या फिर द पीपल ऑफ दैट नेशन आर अर्निंग मोर. ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है इट मीन्स दे आर अर्निंग मोर. ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, उससे भी जो टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट को वो ज़्यादा आएगा. और अगर टैक्स रेवेन्यू हमारा ज़्यादा होगा तो इट विल इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज. ऑल्सो इफ अ नेशन इज ग्रोइंग इट मीन्स उस नेशन में जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो रही है. पीपल आर कंज्यूमिंग मोर विच विल ऑटोमेटिकली इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री. और जब एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इट विल लीड टू ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री. Next, if we talk about the factors that influence the growth of an economy, तो it includes infrastructure, which is very very important. अब infrastructure क्या है? Which is increasing connectivity in a nation is infrastructure, be it in railways, roadways. जिससे connectivity बढ़ता है, it is in infrastructure. It is a part of infrastructure. It means that infrastructure of a nation is increasing. तो अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ अ नेशन. नेक्स्ट फैक्टर इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एवरी कंट्री हैज नेचुरल रिसोर्सेज. किसी कंट्री के पास एबंडेंस में है, किसी कंट्री के पास स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज है, बट हाउ यू यूज दैट नेचुरल रिसोर्स मेक्स योर कंट्री डेवलप और ग्रो. तो किसी नेचुरल रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना या फिर उस नेचुरल रिसोर्स का जुडिशियस यूज़ करना सो दैट हमारी करंट जनरेशन को भी बेनिफिट हो और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, उससे एक नेशन की या एक कंट्री की ग्रोथ होती है. एंड दैट लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि जब किसी नेचुरल रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, दैट लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वी हैव इज ह्यूमन कैपिटल. नाउ वी ऑल आर ह्यूमन कैपिटल. आर वी? एक ह्यूमन जो है वो एसेट कब बनता है? जब वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा है या फिर वो इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है. इफ यू आर सिटिंग आइडल यू आर नॉट एन एसेट ऑफ अ कंट्री. बट अगर आप कुछ स्किल्स लेके कुछ प्रोडक्टिविटी या फिर किसी प्रोडक्टिव वे में काम कर रहे हैं या फिर अगर आप नेशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो विथ दैट मीन्स दैट यू आर एन एसेट ऑफ दैट कंट्री. सो ह्यूमन कैपिटल जितना अच्छा होगा इट मीन्स उसके पास बेटर स्किल्स होंगी और इट विल लीड टू डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ ऑफ अ नेशन. नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी. अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो यू नीड लोन, बट लोन कहाँ से मिलेगा? बैंकिंग से. तो दिस सेज कि अगर बैंकिंग सर्विसेज की अवेलेबिलिटी अच्छी है या फिर टाइमली अवेलेबल सर्विसेज है तो दैट विल ऑल्सो लीड टू ग्रोथ ऑफ अ नेशन, बिकॉज वहाँ पे जो डिले है वो नहीं होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बूस्ट है वो और जल्दी आएगा. सो दिस इज अबाउट the growth aspect, growth concept. But what if we talk about development? How it is different from growth? तो growth में हमने क्या देखा? That it includes quantitative aspect, whereas growth is a concept which includes qualitative aspect. Now you will ask me कि what is the difference between quantitative and qualitative? तो क्वांटिटेटिव इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू नंबर्स. जो नंबर से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव. बट क्वालिटेटिव में हम लोगों की वेलबींग का भी ध्यान रखते हैं. वी टेक केयर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑल्सो. तो डेवलपमेंट में क्या होगा? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग द कंट्रीज इकोनॉमी ओवर टाइम. अब वो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी?
बाय इंक्रीजिंग द नेशन वेल्थ, जो कि हम ग्रोथ में भी देखते थे, जो नेशन की वेल्थ है उसमें अगर इंक्रीज आता है तो वी सी दैट ए कंट्री इज ग्रोइंग. बट what is added in it? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल. जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों को ऐड करा जाता है तो इट मीन्स कि जो नेशन है उसकी डेवलपमेंट भी होती है. नाउ इट इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स जैसे ग्रोथ ऑफ इनकम, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इम्प्रूव्ड हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर. These all aspects are included in development. And it aims at creating stable and prosperous economy. किसके लिए? For the well-being of the entire population. So you see that growth में क्या था? एक सिर्फ wealth creation पे ध्यान दिया गया था, but development में हम लोगों का भी ध्यान रखते हैं. Development में पूरे the people of the nation or the entire population is taken care of. So this is the meaning of development. But what if we talk about the factors of development? So factors of development में हमारा आता है human resources. Human resource is a major factor or a major asset of every country or a nation. तो अगर human resource अच्छा होगा, it means कि एक जो population है उसके पास अच्छी skills है जिससे वो एक कंट्री की ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है. नेक्स्ट इज एजुकेशन. दीज फैक्टर्स आर सिमिलर टू ग्रोथ ओनली. एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो पॉपुलेशन के पास स्किल्स भी अच्छी होंगी और अगर स्किल अच्छी होगी तो एक कंट्री की डेवलपमेंट भी होगी. नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अच्छा है तो इट विल लीड टू इकोनॉमीज एफिशिएंसी एंड इट विल improve the standard of living of people. Next is availability of natural resources. So this point also we have discussed in growth aspect, in the growth concept. तो natural resources में वही है कि judicious use of resources करना है so that जो आने वाली generation है वो भी resources का अच्छे से utilization कर सके. Next is capital formation. तो capital formation क्या है? It is addition of savings and investment. अगर जॉब क्रिएशन ज़्यादा है इकोनॉमी में, इट मीन्स जो पीपल है, द पीपल ऑफ कंट्री हैव मोर सेविंग्स, दे आर रेडी टू मेक मोर कंजम्पशन. और जब वो ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट रेट भी बढ़ेगा. सो ये तो थे हमारे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को. बट वी हैव 5 पिलर्स ऑल्सो जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं. क्या क्या है? वी हैव हेल्थ, एजुकेशन, अमेनिटीज विच इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द पीपल. अगर फैसिलिटीज जो है लोगों के पास होगी तो इट विल क्रिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. एनवायरमेंट एंड सर्विसेज सेक्टर विच इज IT एंड ट्रांसपोर्ट. और ये जो पिलर्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट इज मेजरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? GDP ऑफ अ नेशन. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक नेशन का जो है डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं वो हमें कैसे पता लगेगा? तो वी हैव वेरियस इंडिकेटर्स. फ्यू ऑफ देम आर ग्रीन GDP. अब GDP क्या है? कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर. बट ग्रीन GDP क्या है? तो ग्रीन वर्ड हेयर टेल्स अस अबाउट द एनवायरमेंट. तो ग्रीन GDP क्या है? जब हम GDP में से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट गिव्स अस ग्रीन GDP. फ्यू अदर मेजरमेंट्स आर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और भी जो हमारे मेजरमेंट्स हैं दैट हेल्प अस इन measuring the economic development of a country. These are very in-depth topics. If you want me to make a video on it, या फिर अगर आपको इसको separate, अगर आपको इसमें कुछ confusion है इन measurements में तो I can make a separate video on it. बट अभी जो है हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि इसके measurements जो हैं वो क्या क्या है, किस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को measure कर सकते हैं. तो ये जो था ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करी.
बट अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो आई एम प्रीटी श्योर कि डिफरेंस जो है आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और ये जो दोनों हैं वो किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं. तो दिस चार्ट इज जस्ट अ रिवीजन चार्ट फॉर यू. लेट्स सी इट. सो द मीनिंग हियर सेज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इट्स एन इंक्रीज इन द रियल आउटपुट. रियल आउटपुट क्या था? दैट इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट तो इट फोकसेज ऑन चेंजेस इन इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड along with the welfare of the society. तो इसमें क्या है? ग्रोथ में क्या है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, वेयर एज डेवलपमेंट में क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. नेक्स्ट इज द फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फोकसेस ऑन द इंक्रीज इन कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी. अगर जीडीपी के कंपोनेंट्स में इंक्रीज है तो इट मीन्स जो इकोनॉमिक का ग्रोथ है हो रहा है. Whereas if we talk about development, so it focuses on growth of human capital, decrease in inequality, structural changes that will improve the well-being of a nation. Measurement. अब measure हम इसको कैसे करते हैं? तो I told you कि जो economic growth है उसका qualitative measurement होता है या फिर qualitative factors जो है उसको measure करते हैं. Whereas if I talk about development तो उसको qualitative plus quantitative measures जो हैं वो फैक्टर्स जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट द इफेक्ट तो इट इज इफेक्टेड बाय द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन एन इकोनॉमी. वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट डेवलपमेंट देन इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. रेलेवेंस क्या है इसकी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बताता है ग्रोथ ऑफ अ नेशन कि एक नेशन की कितनी ग्रोथ है. वेयर एज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है it tells us about the progress of the quality of life of a country कि लोगों की जो लाइफ है या फिर लोगों का वेल बीइंग कैसा है. तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन growth and development. There was a case in 2014, prior to the election of 2014, there was a debate which is known as Sen Bhagwati debate, which is a very famous debate. and ये debate किस पे based थी? growth and development aspect पे. So you see we have a real phenomena जहाँ पे ये चीज़ें इकोनॉमी के लिए बहुत मैटर करती हैं या फिर ये जो चीज़ें हैं ये डिस्कस होती हैं, लोगों को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और एक इकोनॉमी जो है वो कैसे उठनी चाहिए, इसकी कैसे पहले ग्रोथ होनी चाहिए फिर डेवलपमेंट होनी चाहिए. क्योंकि डेवलपमेंट में आई टोल्ड यू कि डेवलपमेंट में लोगों का वेलफेयर भी इंक्लूडेड है, वेयर एज ग्रोथ जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखता है. तो दिस इज़ अ डिबेटेबल पॉइंट कि इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो, बी इट ऑफ एनी नेशन. तो देयर इज़ अ डिबेट between Sen and Bhagwati. These are our famous economists. तो इनके बीच में एक डिबेट हुआ which was prior to election 2014. तो हमारे भागवती जो थे he focused on growth aspect कि सबसे पहले नेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो सोशल सर्विसेज है या फिर सोशल फैक्टर्स हैं, एजुकेशन है या फिर हेल्थ है, तो वो जो पेस है वो खुद ले लेता है या फिर जो सोशल वेलफेयर है वो बाद में खुद आता है, बट सबसे पहले जो है कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए. वेयर एज अमर्त्य सेन फोकस्ड ऑन सोशल वेलफेयर फर्स्ट एंड देन ही सेड कि अगर किसी कंट्री का सोशल वेलफेयर है, अगर उस कंट्री के लोग खुश हैं, अगर लोगों को हेल्थ सर्विसेज अच्छा मिल रहा है, अगर एजुकेशन उस नेशन में अच्छा है या फिर सोशल सर्विसेज जो है वो अच्छे से मिल रही हैं, तो ग्रोथ जो है एक नेशन का खुद ब खुद हो जाएगा. तो यू सी वी हैव अ रियल फिनोमेना, या फिर अगर नेशन में जो है ये चीज़ें डिस्कस होती हैं या फिर नेशन के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रोथ होनी चाहिए या फिर डेवलपमेंट होनी चाहिए. एंड अ टास्क फॉर यू बिफोर वी गो, यू टेल मी, यू सर्च बाय योर सेल्फ कि कौन कौन से नेशंस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ ग्रोथ है और डेवलपमेंट नहीं है, या कौन कौन से नेशंस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ डेवलपमेंट है, ग्रोथ नहीं है. आई रैप अप माई टॉपिक है. This was about growth and development, and this is very important for your mains perspective also and in general also. Growth and development के बीच में difference जो है वो पता होना चाहिए, so that अगर कभी भी word आए तो you do not get confused. And if you want a PDF of this lecture, make sure you join the Telegram channel, and make sure you hit the like button and comment below what are the further topics you need from me. Thank you so much.